Good morning students, welcome back for the class 12 subject business studies chapter number 5 staffing revision part. Today we will go with the revision part of selection, a topic known as selection. What is selection and what are the processes of selection we will see in this video today. So let's begin with the staffing definition itself. So today's topic is related to selection. We can go with the selection part. Selection. What is selection? You should know. Then I have given one definition over here. Selection is the process of choosing from amongst the candidate from within the organization or from outside the most suitable person for the current position or for the future positions. In this definition, itself says that the candidate should be elected, a candidate should be picked out from the organization or from outside who is most suitable for the particular job is considered for a position, future position. It is known as selection. सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हम एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं. उस कैंडिडेट को जब हम इलेक्ट करते हैं तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि वो जो पोजीशन होल्ड करेगा वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करे. यही हम ध्यान में रखते हैं सिलेक्शन में. सिलेक्शन इज अ वेरी healthy process, or we can say very decisive process where you have to select the right candidate for the right job with the right qualification. अगर आपने सिलेक्शन में थोड़ा सा भी गलती कर दी तो इन दी एंड आपका जो पूरा मेहनत है या जो प्रोसेस आपने फॉलो किया वो पूरा रॉन्ग हो जाएगा. इसीलिए सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे चूजिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ह्यूमन टेंडेंसी क्या है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर. तो ह्यूमन टेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन के जो बहुत सारे एचआर होते हैं या मैनेजर्स होते हैं जो इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं उस बेस पे वो पूरा एनालिसिस करने के बाद में एक राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं. तो उसी बेस पे हम लोग अब प्रोसेस भी पढ़ने वाले हैं. तो प्रोसेस क्या है वो चेक करते हैं. Selection process. In this, we are having different processes. So one by one, we will see it in a detail. And I have written something over here. The selection process which are being framed by the organization can differ from one organization to another organization. That is also be written in the slides. Every organization creates a selection process because they have their own requirements, although the main steps remains the same. So let us understand the brief how the selection process works. हर प्रोसेस के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन अपना सिलेक्शन प्रोसेस बनाती है. उस प्रोसेस के बेस पे वो अपने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करवाती है. वेयर अगर ये पॉसिबल है तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं. तो वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन वो सिलेक्शन प्रोसेस अडैप्ट करती है. जैसे हम लोग यहाँ पे मैंने एक इमेज बनाया हुआ है. मे बी इट इज नॉट क्लियर बट इन वीडियो वी विल गो विद द वन बाय वन स्लाइड. सो फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, then selecting test interviews, then checking the background, then selection decision, physical examination. All these 5-6 process have a two aspect, whether the candidate will be suitable to us or it can be rejected. Every level has an rejected application also. It can be rejected. If you select one, then you can go for selection. Then 3, 4, 5, 6. 6 interviews are being conducted with the candidate. If he is not properly giving you need of organization, then it can be rejected. And later on it is job offer, then employee's contract, and later on evaluation. But in selection process, evaluation is not there. So we will not discuss on this. So I will start with the first topic.
as preliminary screening. Preliminary screening means initial, first phase of an selection process. First phase. In first phase, I have written over here, after applications has been received, they are properly checked by the regarding qualification, etc. by screening community. A list of candidates to be called for employment test made and unsuitable candidates are rejected. Although in preliminary screening, a screening committee always work for candidates receiving resume. For example, मैं अगर कोई कंपनी के अंदर काम करना चाहता हूं तो मैंने कंपनी के अंदर बायोडेटा दिया होगा, रिज्यूम दिया होगा विद द हेल्प ऑफ ईमेल और confidential or face to face. I have gone to that particular organization and I have given them a resume. What they will do, according to my qualification, according to my experience, according to my workflow and whatever I have done or whatever I have achieved in past, they make a list, and according to that list they make a short list of candidates. They make a list of candidates who are suitable for a particular job. So क्या होता है कि जॉब सिलेक्ट करने के लिए उन्होंने मेरा रेज्यूमे लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने रिज्यूम दिया भी होगा, फिर वो क्या करते हैं उसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में फिर उनको बुलाया जाता है एम्प्लॉयज टेस्ट के लिए। अब एम्प्लॉयज टेस्ट के बारे में आई वुड से दैट फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए ये लोग कॉल करते हैं। जब कॉल आता है तो उसके अंदर से बहुत सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाते हैं और लिस्ट बनाते टाइम पे भी बहुत सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब लिस्ट बनाते हैं तो उस लिस्ट में क्लियर होता है कि किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना है, कौन से बेसिस पे बुलाना है। तो यही एक प्रिलिमिनरी स्क्रीन है या फिर हम उसको कह सकते हैं इनिशियल स्क्रीनिंग, फर्स्ट फेज ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पर कुछ मैंने एक इमेज बनाया लेकिन इट कैन नॉट बी क्लियर। सर्विस रिक्वायर्ड, सोर्सेज आर कैंडिडेट, they go to organization for interview purpose and after that pre-screening according to qualification they are invited for the interview। ऐसा कुछ प्रोसेस है। ये मैंने इमेज बनाया लेकिन शायद वीडियो में क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट इज सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। सिलेक्शन टेस्ट मीन्स अ कैंडिडेट who has to be appointed from the list of candidates, they have to go with the selection test. First test is psychological test, which are based on assuming that human behavior at work can be predicted by giving various tests like aptitude test, personality test and etc. Whereas another test is employment test for judging the applicant's suitability for the job. साइकोलॉजिकल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें ह्यूमन टेंडेंसी या वो कितना स्ट्रेस हैंडल कर सकता है उसके बारे में भी ये लोग जांच करते हैं। जैसा जैसा वर्क आपको दिया जाता है उस वर्क के बेस पे आप कैसे काम करोगे, कैसे कितने क्रिएटिव हो आप, ये सब चीज साइकोलॉजिकल टेस्ट के बेस पे होता है। वेयरएज मैंने यहाँ पे लिखा है पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट इज नॉर्मली गिवन बाय द राइटिंग फॉर्म। आपको एक बड़ा सा पेपर दे दिया जाएगा जिसके अंदर 50 to 100 क्वेश्चन होंगे, आपको उसको सॉल्व करना है। उसके अंदर न्यूमेरिकल्स के बाद में इकोनॉमिकल, नॉलेजेबल, ऐसे सारे क्वेश्चन होते हैं। उस क्वेश्चन की टेस्ट आपको देनी होती है और टेस्ट के बेस पे फिर आपको जज किया जाता है। फिर आपको फेस टू फेस बुलाया जाता है। फेस टू फेस बुलाने के बाद में आपके सारे सेशन लेते हैं जिसके अंदर आपसे कम्युनिकेट किया जाता है और डिस्कस करते हैं whether the whatever answer you have written it is appropriate or not। वो आपकी थिंकिंग को जज करते हैं और थिंकिंग के जज के बेस पे आपकी क्रिएटिविटी का एनालिसिस कर लेते हैं। अब क्रिएटिविटी का एनालिसिस कैसे होगा? अल्टीमेटली वो आपके फेस पे, आपके एक्सप्रेशन के बेस पे, आपके वे ऑफ टॉक के बेस पे ही वो जज कर लेते हैं कि ये बंदा कितना क्रिएटिव है या नहीं है, या कितना स्ट्रेस से ले सकता है या कितना स्ट्रेस नहीं ले सकता। वो सब कुछ स्क्रीनिंग फेस टू फेस देख लेते हैं और उसी बेस पे फिर आपको अपॉइंट भी करते हैं। तो ये एक सिलेक्शन प्रोसेस का एक टाइप है जिसके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के बेसिस पे हम लोग जजमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक इज एम्प्लॉयमेंट।
employment interview has been divided into three parts. So, in employment interview, to find out the suitability of candidate, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब ओपनिंग है वो कैंडिडेट्स के साथ में सूटेबल है कि नहीं, ये जज करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में। उसके बाद में उस कैंडिडेट के बारे में जितनी जानकारी ले सकते हैं ले लेते हैं, जैसे क्वालिफिकेशन, वो एडिशनल क्या सीखा हुआ है, टेक्निकल नॉलेज क्या है उसके पास, फिर बाद में वो क्रिएटिव कितना है, उसका इनोवेटिव आइडियाज कितना सक्सेसफुल हो सकता है आगे फ्यूचर में, उसके एम्स क्या है, उसका टारगेट क्या है, ये सब चीजें हम लोग एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर कंडक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में उस कैंडिडेट को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर करते हैं। फैमिलियर करने का मकसद ये होता है कि उसको बताया जाता है कि आप कौन सा जॉब करने वाले हो, कैसे जॉब करोगे, आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वही सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं। और फिर बाद में आगे के प्रोसेस में हम उनको डाइवर्ट कर देते हैं। द नेक्स्ट प्रोसेस इज रेफरेंस चेक। अब रेफरेंस चेक क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी होगी उस इंफॉर्मेशन के बारे में सर्च करना, और जो डिटेल उन्होंने दी है वो करेक्ट है कि नहीं, वो चेक करने को हम कहते हैं रेफरेंस चेक। मैं अगर बायोडेटा देता हूँ तो बायोडेटा के अंदर मैं एक रेफरेंस नंबर भी देता हूँ या रेफरेंस कॉन्टैक्ट देता हूँ, जैसे मेरे कोई रिलेटिव्स हो गए या फिर मेरा एजुकेशन सर्टिफिकेट जो है उसके ऊपर एक सीट नंबर होता है, वो सीट नंबर का चेकमेंट, ये सब चीजें होता है, चेक करते हैं उसको, इसको कहते हैं रेफरेंस। प्रायर टू फाइनल सिलेक्शन द prosperity employer makes an investigation of the reference supplied by the applicant. He undertakes a thorough search into candidates' family background, past employment, education, police records, etc. ये इतनी सारी चीजें वो लोग चेक करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड, पास्ट एम्प्लॉयमेंट क्या करते थे, एजुकेशन क्या है आपके पास, कोई पुलिस रिकॉर्ड है तो नहीं, ये सब चीजें चेक करते हैं। और ये सब चेक करने के बाद में ही आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। तो रेफरेंस चेक इज नथिंग बट गो फॉर इंक्वायरी प्रोसेस, दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन। आपने रेफरेंस चेक कर लिया, इंटरव्यू देख ली, उसके बाद में प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, अब आता है सिलेक्शन डिसीजन। अब आपको सिलेक्ट करना है कौन सा कैंडिडेट बेस्ट है और कौन सा कैंडिडेट आप सूट कर सकते हो। नियर अबाउट अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने 15 कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाई थी, आउट ऑफ दैट सर्टेन रीजन की वजह से, रेफरेंस फेक होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन या इंटरव्यू क्रैक नहीं किया, इतने सारे रिजेक्ट हो गए, रिजेक्टेड। वेयर एज 20 जो है वो अभी सिलेक्शन डिसीजन में आ जाते हैं। अब 20 कैंडिडेट जो सिलेक्शन में आ गए उसमें से बेस्ट हम लोग को लिस्ट बनानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन डिसीजन के टाइम पे 30 जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दी, 20 एप्लीकेशन को शॉर्ट लिस्ट कर दिया, और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में उस कैंडिडेट को कांटेक्ट करके एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में उसको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल टेस्ट के लिए भी बुलाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कैंडिडेट लिस्ट लिखी हुई है, अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु क्लियर्स द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, इंटरव्यूज एंड reference check is prepared, and then the selected candidates are listed in order for merit list. एक मेरिट लिस्ट क्रिएट की जाती है, उस मेरिट लिस्ट के अंदर जो नंबर 1 पे होगा उसको हाई प्रायोरिटी दी जाती है, जो लास्ट में होगा उसको लास्ट प्रेफरेंस। अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट ही उनके साथ में डील किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मेडिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर होता क्या है एग्जैक्टली, यहाँ पर कैंडिडेट की टेस्टिंग होती है, वो कैंडिडेट प्रॉपरली है कि नहीं, उसके ऊपर कोई मेडिकल हिस्ट्री पुरानी है तो नहीं, ये सब चीजें चेक की जाती है। और चेक करने के बाद में ये एश्योर किया जाता है कि वो कैंडिडेट जो है फिजिकली गुड इनफ है कि वो काम में आ सकता है और एब्सेंटिज्म रिड्यूस हो सके। ये चीज हम लोग करवाते हैं एज एन सेफ्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। A qualified medical expert appointed by the organization should certify whether the candidate is physically fit to the requirement of a specific job. A proper physical examination will ensure high standards of health and physical fitness of employee, thereby reduction in absenteeism.
एक सर्टिफाइड मेडिकल डॉक्टर होता है, वो आपको चेक करता है, फिजिकली पूरा एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करने के बाद में वो सर्टिफिकेट देगा जिसके अंदर वो लिखता है कि द कैंडिडेट इज फिट फॉर द पर्टिकुलर जॉब। अगर उसने ऐसा लिखा है तो अल्टीमेटली आप जॉब के लिए हायर हो जाओगे। तो यहाँ पर ये सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए। अब वो जॉब जैसे जैसे होगी वैसे वैसे फिजिकल चेकिंग होती है। जितना ज़्यादा हाई रिस्क वाला जॉब होगा उतना ज़्यादा डिटेल में चेकिंग कर सकते हैं फिजिकली। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है जॉब ऑफर। मीन्स वी आर गोइंग टू हायर दैट कैंडिडेट, लेकिन वो कैंडिडेट के ऊपर भी डिसीजन इंपॉर्टेंट है कि वो बंदा सैलरी के लिए एग्रीड है कि नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए एग्रीड है कि नहीं, वो ऑफर लेने के लिए तैयार है कि नहीं। कंपनी आपके सामने जॉब ऑफर रख देगी, लेकिन आपको लेना है नहीं लेना है वो आपकी चॉइस है। आफ्टर अ कैंडिडेट हैज क्लियर्ड ऑल द हर्डल्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस, he is formally appointed by the issuing an appointment letter। ये लेटर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मतलब अभी भी आप सेफ नहीं हो। तो एम्प्लॉयमेंट लेटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ओवर हियर। द बोर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस, पे स्केल एंड इंटरनल पार्ट ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, हर चीज के अंदर लिखी होती है। एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, फिर बाद में पे स्केल कैसे होगा, पीएफ कितना कटने वाला है, कैसे कटेगा, क्या क्या बेनिफिट्स उनको मिलने वाले हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस क्या क्या है। उसके बाद में रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की होती है। और अपॉइंटमेंट लेटर में उस पर्टिकुलर पर्सन का नेम होता है, और नेम होने के बाद में 15 डेज के बाद में उनको एक एम्प्लॉयमेंट कोड भी मिल जाता है। तो ये जॉब ऑफर जो है वो अल्टीमेटली एक ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर होता है जो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, कैंडिडेट विल बी सिलेक्टिंग और नॉट, इट इज बेस्ड ऑन दैट कैंडिडेट। सैलरी पे अगर अच्छी नहीं है तो वो बात करने आ सकता है, बात करेगा और बात करने के बाद में डिसाइड कर सकता है कि वो जॉब के लिए आगे बढ़े या ना बढ़े। अगर इन केस कैंडिडेट सेटिस्फाइड है सारे रूल्स एंड रेगुलेशन टर्म्स के साथ में तो उसने जॉब ऑफर ले लेनी है। लेने के बाद में आता है एम्प्लॉयज को कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयज या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज, बोथ आर सेम। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय मीन्स उसके अंदर पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन, इंडक्शन फॉर्म सब कुछ आपको भरनी होती है। अब कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, और इट इज बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप इसके आगे कंटिन्यू करोगे, और अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो फिर बाद में शायद आपको ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्ट कर दे या फिर निकाल भी सकती है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज के इसमें जो आज का जो मॉडर्न ट्रेंड है इसके अंदर क्या होता है, जॉब परमानेंट नहीं दी जाती, कैंडिडेट को चेक किया जाता है 1 साल के बेस पे, 6 महीने के बेस पे, 3 मंथ्स के बेस पे। लेकिन अर्लियर फेसेस में क्या होता था या ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था कि आपने अगर एक एम्प्लॉय को ले लिया तो उससे लाइफ टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती थी, वो उसी जगह पे काम करते ही रहता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब आप लेवल्स पढ़ने लगे, तो लेवल्स बेस पे यहाँ पर ऑफरिंग अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, आफ्टर गेटिंग द जॉब ऑफर the candidate has to give an acceptance. After acceptance, both employer and employer will sign the contract of an employee which contains terms and conditions, pay scale, leave rules, hours of work, mode of termination of employment, etc. ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं कि अगर आप जॉब छोड़ने वाले को कितने पहले पीरियड में नोटिस देना चाहिए, 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज, 60 डेज, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑर्गेनाइजेशन। आप अगर छोड़ने वाले हो जॉब तो कितने टाइम पहले आपको नोटिस देंगे, कितना लीव्स आप ले सकते हो, कितनी सारे पे स्केल्स आप हो सकती हैं, उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशंस के रिलेटेड हमारे बात होती है। तो ये सब चीजें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती हैं और आप में साइन करनी होती है। अगर एज एन कैंडिडेट मैं साइन कर रहा हूँ तो एम्प्लॉय भी साइन करेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। वी हैव सीन ऑल द फीचर्स process of selection. Last is evaluation, but evaluation is not the part, but I'll tell you what is evaluation. After selecting the candidate, it has to be gone for 1 year, 6 months, 3 months based on the organizational contract. After that, the manager or the HR department always check whether the candidate what they have hired is appropriate or up to the mark or not. After evaluation, they decide whether the candidate will continue or not. It is known as evaluation, but it is not a part of the syllabus, but you should know it for your knowledge base. That's it for today. Thank you.